Hello everyone, how are you doing today? My name is Kumar Karthike and I welcome you to Unacademy, India's largest online learning platform. Before beginning with this session, I would just want to know if my voice is audible to you all, if you can see me on your screens, if you can let me know that. The objective of this entire course would be to transform you from a beginner to a master, and that is why, keeping that in mind, I would be taking up any topic from right from its basics and would escalate it up to a मास्टर्स लेवल जहां पे मैं आपको कई सारी डिटेल्स साथ में देता चलूंगा और चीजों को कनेक्ट करते हुए एक एनालिटिकल वे में हम पूरे कोर्स को अप्रोच करेंगे. This is for those who have not yet subscribed to an academy. I would recommend to get subscribed immediately. And the most important benefit of this subscription is that you can get access to unlimited live and recorded courses from India's best educators. So I would request जितने भी लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, I would request them to go to unacademy.com, register themselves, or you can download ऐप फ्रॉम योर गूगल स्टोर और एप्पल स्टोर और वहां पे जाके रजिस्टर करके फिर कई सारे जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं अनअकैडमी के उसमें से आप चूज कर सकते हैं. एंड दिस वुड help you immensely in your preparation. Now, let me quickly talk about the benefits of this subscription. If you see, not only you would get daily live classes, you can engage in the discussions while the class is going on, you can chat with the educator, you can ask your doubts, which is a very important part in preparation. You can answer polls. जब कभी भी educator polls on करता है तो you can give the right option which you think is correct. तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं और एक तरह का पूरा environment रहता है while the class is going on. Also, you would get the test series for free, which is a very important aspect while you are preparing for any examination. जब तक आप अपने नॉलेज को टेस्ट नहीं करते हो एक एग्जाम एनवायरनमेंट में, तब तक आप चाहे जितना भी आप पढ़ लो, वो जो फेज होता है कि आप तैयार हैं कि नहीं किसी एग्जाम के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ आप टेस्ट सीरीज से ही देख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो. तो वो चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी. साथ ही साथ आप कई सारे क्विजेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो इन अ रेगुलर मैनर, जो कि मॉक टेस्ट में भी फॉर्म में भी अवेलेबल है, अलग तरह के डेली क्विजेस के फॉर्म में भी अवेलेबल है, और इन सारी चीज़ों का आपको डिटेल्ड एनालिसिस दिया जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस एनालाइज की जाएगी. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्सेज आर मेड इन दिस फॉर्मेट ताकि आपको एक स्टेप बाय स्टेप हेल्प मिलती चली जाए और कहीं पर भी आप एग्जाम के दौरान कहीं फंसे ना. वी हैव 15,000 कोर्सेज for different topics on Unacademy. 15,000 courses from different educators. तो एक वास्ट पूल है आपके पास, आपको एक अपॉर्चुनिटी है चीज़ों को सीखने के लिए, कई सारे नज़रियों को देखने के लिए, किसी भी एक टॉपिक को अलग अलग एंगल से समझने के लिए कई सारे लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे. ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट इज कि मान लीजिए आपकी कोई एक लाइव क्लास थी जो आपकी छूट गई, मिस हो गई, तो ये जो लाइव क्लास है दिस वुड बी अवेलेबल इन अ रिकॉर्डेड फॉर्मेट ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म इटसेल्फ. लेकिन ये जो अनलिमिटेड एक्सेस है इन लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड वीडियोस का, वो तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब कर पाएंगे और जब तक आपका सब्सक्रिप्शन होगा. तो रिकॉर्डेड क्लासेस you can watch all of these at the comfort of your home from the devices of your choice. Now, this is the ideal format of preparation. यहाँ पे आप जब तैयारी करोगे, धीरे धीरे कोर्सेज देखोगे तो आपका एक्सपी बढ़ता चला जाएगा. एंड ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स आर देयर ऑन अनअकैडमी ऐप, जो कि बहुत ही इंटरैक्टिव है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसको यूज़ करने में. तो आई वुड जस्ट रिकमेंड दैट यू कैन download it from either of the two and just start using it after subscribe. This is something about me. I have 5 years of teaching experience. I have served under many reputed IAS institutions at Delhi. I have mentored students of various central and state level examinations, appeared for 3 times for UPSC CSE interviews, a graduate from Triple IT Calcutta, and you can read more about me from here. This is me smiling over here, and you can also join me
on the Telegram group which I have created. ये टेलीग्राम ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहाँ पे इस पूरे सेशन की जो कोई भी मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ या आगे करूँगा उसकी पीडीएफ फॉर्मेट में स्लाइड्स जो है वो सारी की सारी इस ग्रुप पे मिलेगी आपको। तो दिस यूजर नेम unacademy_k, आप इसको सर्च कर सकते हो, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करते हो तो एक फ़ायदा और होता है कि जब कभी भी मैं ऑनलाइन आऊँगा कोर्सेज लेने के लिए तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड दैट वुड बी हेल्पिंग यू इन योर फेज ऑफ प्रिपरेशन। ये मेरी अनअकैडमी वेबसाइट का लिंक है, मेरी प्रोफाइल का लिंक है कार्तिकेय 3107। आप चाहें तो यू कैन यूज दिस यूजर नेम @कार्तिकेय 3107 या फिर मेरा नाम कुमार कार्तिकेय सर्च करके आप मुझे ढूंढ सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे ही कुछ मुस्कुराता हुआ मिलूंगा। नॉट ओनली मी, यू कैन get access to the courses of top educators of India। ये सुदर्शन गुर्जर सर जो ज्योग्राफी लेते हैं, मृणाल पटेल का नाम सुना होगा आपने इकोनॉमी के लिए। रोमन सैनी also takes up live courses and recorded courses for different topics and you can watch him as well। Ayush Sangi, very important and a very popular educator। Ashish Malik, Dipanshu Singh for oh, current affairs and all। तो ये सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स तो होंगे एंड थाउजेंड्स मोर। ये सारे के सारे एजुकेटर्स की क्लासेस को देखने का आपको मौका मिलेगा व्हेन यू आर सब्सक्राइब। नाउ व्हाट अबाउट द सब्सक्रिप्शन प्लान्स, आई विल टेक अप दैट आल्सो बट जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स, कई सारे टॉपिक्स जितने भी सिलेबस में है ये सारे के सारे आप देख सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। एज आई टोल्ड यू, मोर देन 15,000 कोर्सेज आर अवेलेबल टू हेल्प यू आउट इन प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी सीएससी। एक फायदा और हो जाता है आपको एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है अनअकैडमी यूज करने का, अनअकैडमी पर सब्सक्राइब करने का, कि जब मान लीजिए आप किसी कोचिंग क्लास पे अगर आप जाते हैं तो सपोज यू टेक अप हिस्ट्री एज एन एग्जाम्पल और आप क्लास में बैठे हैं और जो टीचर आपको पढ़ा रहा है यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद हिम, जो वो चीज़ डिलीवर करना चाह रहा है वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। तो जब कभी भी आप कोचिंग में जाते हैं तो देन यू डोंट हैव द चॉइस ऑफ अ टीचर, बट ओवर हियर ऑन एन अकेडमी यू वुड हैव डिफरेंट टीचर्स फॉर द सेम टॉपिक। हिस्ट्री के भी कई सारे टीचर्स होंगे, तो आपको जिस किसी का भी कोर्स अच्छा लगता है आप उसे चूज करके उसे देख सकते हो। Almost 323 courses are available of history alone by different educators. So that is a very big advantage which would help you in preparing for UPSC. These are the subscription charges. I would recommend, highly recommend this part, minimum 12 months, and I'll let you know why. Because you see, जो तैयारी है ये कोई तुक्के वाली बात नहीं है। यू कांट जस्ट हिट एंड ट्रायल वाली चीज नहीं कि आपकी 1 महीने 2 महीने 3 महीने में हो जाए। दिस प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी टेक्स टाइम। तो आई वुड हाईली रिकमेंड एटलीस्ट 12 महीने की आप प्रिपरेशन, 1 साल का आप कोर्स लो या फिर 24 मंथ्स का आप कोर्स लो, क्योंकि जब प्रिपरेशन आप करोगे तब भी ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस है, जो टेस्ट सीरीज है, ये सब काम आएगी। और आपकी प्रिपरेशन जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद भी रिवीजन के लिए बहुत काम आने वाला है। तो 24 मंथ्स अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू। नाउ व्हाट आर द चार्जेस? द चार्जेस इज 44,000 पर ईयर एंड 64,000 फॉर 2 years। अब आप एक चीज अगर ध्यान दो, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन 8,000 का है और 12 महीने का 44,000 का। अगर आप 8,000 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो दैट वुड कम अराउंड 96,000। So instead of 96,000 you are being charged only 44,000। That is a very good deal। And not only that, if you apply this code, this referral code KK01, तो ये जो 44,000 का जो कोर्स है ये आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट 39,600 में मिल जाएगा। सेम गोज विद दिस ऑल्सो। KK01 अगर आपने कोड अप्लाई किया तो यू वुड इमीडिएटली गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड दिस वुड बी फॉर ओनली 57,600। अब ये हो सकता है आपको लगे कि भाई एक साथ 39,000 इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, देन I have a surprise for you as well, and that is no cost EMIs available for 6, 12 and 24 months। तो ये जो कोर्स है अगर आप पर मंथ अगर देखो तो आपको अराउंड 3,300 के आसपास पड़ेगा। और यही कोर्स जो आपका 12 मंथ्स का है, दिस वुड बी अराउंड 2,400
2 साल के लिए अगर आप देखो 24 मंथ में, तो 2400 रुपये के आसपास पर मंथ पे पड़ेगा, एंड दैट इज अ वेरी गुड डील व्हेन यू आर गेटिंग फ्री टेस्ट सीरीज एंड नो पूल ऑफ नॉलेज फ्रॉम द इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। दूसरी चीज और जो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, दैट इज द आइकॉनिक कोर्स, जहां पे आपको प्रिपरेशन के साथ साथ आपको एक गाइड भी मिलेगा टू हेल्प यू नॉट ओनली सॉल्व योर डाउट्स बट ऑल्सो गिव यू द राइट डायरेक्शन। और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन के बिना आप जंग जीत नहीं सकते, और अर्जुन जीत इसीलिए रहा है महाभारत में क्योंकि कृष्णा का डायरेक्शन था उसके पास। इस वजह से आइकॉनिक कोर्स जो अनअकैडमी का है, ये भी एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपकी तैयारी के लिए, जहां पे वही 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स का आपके पास चॉइस रहेगा। एंड दिस कोड वुड हेल्प यू अगेन इन दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल, जहां पे 64,000 का कोर्स आपको 57,600 में मिलेगा, और 99,000 का 2 साल का कोर्स आपको 89,100 में मिलेगा। आफ्टर यू अप्लाई दिस कोड you would get instant 10% discount. Available EMIs 12 months and 24 months, and this is actually a very good deal, and I would recommend you to go for it because honestly ये चीज आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाली है। Right, so beginning up with the course today, let me give you an outline first of all कि हम लोग मेडिवल इंडिया को अप्रोच करेंगे कैसे। हाउ वुड वी गो थ्रू द एंटायर सेगमेंट, क्या क्या टॉपिक्स हम लोग डील करेंगे, किस तरीके से हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक अप्रोच क्या होगी हम लोग की, वो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मेडिवल इंडिया के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो मेडिवल इंडिया का जो सेगमेंट है, इफ आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ टाइम लाइन, मेडिवल इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम 7th सेंचुरी एडी, 7 सीई भी कहा जाता है, और ये 1857 तक जाता है। 1857, this is the time where the last Mughal ruler Bahadur Shah Zafar was present, although this period is a overlap क्योंकि ब्रिटिशर्स ऑलरेडी 1757 में आ चुके थे और 1947 तक रहते हैं, तो 1757 से लेके 1857 एक पहला पार्ट रहता है, और दूसरा फेज जो है मॉडर्न इंडिया का वो 1947 तक का रहेगा। तो ये जो एरा है 1857 का, ये ओवरलैप है मॉडर्न और मेडिवल का। ये जो कहानी है मेडिवल इंडिया की, ये शुरू होती है 7th सेंचुरी एडी से। इसके पहले एंशिएंट इंडिया का पार्ट है, जहां पे आप देखोगे द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट डायनेस्टीज। जो लास्ट की डायनेस्टीज थी, जैसे गुप्ता डायनेस्टी थी, पोस्ट गुप्ता पीरियड होगा, फिर वर्धन डायनेस्टी होगी, पुष्यभूति डायनेस्टी जिसे कहा जाता है, हर्षवर्धन का नाम सुना होगा। तो ये हर्षवर्धन का जो रूल था वो 649 में खत्म होता है, और यहीं से ही फिर आप देखोगे एडवेंट ऑफ इन्वेडर्स, इस्लामिक इन्वेडर्स ये शुरू होते हैं, और वो फेज आ जाता है फिर आपका मिडवल इंडिया का। तो 7th सेंचुरी की बात है, 600 समथिंग मीन 7th सेंचुरी, और ये पूरा का पूरा जो कोर्स है मिडवल इंडिया का, ये जाता है 1857 का। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में कई सारे इवेंट्स होंगे, कई सारी डायनेस्टीज आएंगी, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जस्ट क्विकली लेट मी टॉक टू यू अबाउट द यूटिलिटी ऑफ दिस। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आई थिंक ये स्लाइड कुछ गड़बड़ हो गई है। Just let me quickly talk to you about the utility of this subject and also the approach. अच्छा, आप एक तरह से ये समझिए कि मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ। जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ये आपको आगे मेडिवल इंडिया के टॉपिक्स में बहुत हेल्प करने वाली है। एंड जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, राइट। ये कुछ 4 फॉर्मूले हैं जिसे हम लोग पिकअप करेंगे, और यकीन मानिए अगर ये 4 फॉर्मूले आपको समझ में आ गए, तो आपके लिए हिस्ट्री बहुत ही आसान हो जाएगी। तो कीपिंग discussing more on these formulas, just take an I'm just taking an example to make it more clear to you.
इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। सपोज देर इज अ पर्सन हु इज सिटिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म ऑन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। एक आदमी है, रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, बैठा है, और हिज वेट इज 30 kg। ही इज सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस एंड ही इज ब्लाइंड फ्रॉम वन आई। एक आंख से देख सकता है, काड़ा आदमी है, वेट 30 kg, सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस, लकवा मार गया, चल नहीं पा रहा है, एंड ब्लाइंड फ्रॉम वन आई। और उसके पास एक बैग है जिसमें उसके पास 10 करोड़ रुपए हैं, एंड ही सिटिंग ऑन द स्टेशन। और वो बार बार चेक कर रहा है, उस बैग को खोलता है, पैसे देखता है और फिर वापस रख देता है। नाउ टेल मी, क्या होगा इस आदमी के साथ? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आइडियल सिचुएशन जहां लोग कहते हैं अरे पैसा कुछ नहीं है, जिंदगी में तो प्यार होता है, पैसा कुछ नहीं, हाथ की मैल है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आइडियल सिचुएशन, बट टॉकिंग अबाउट द जनरल पब्लिक। क्या होगा इस आदमी के साथ? क्या आपको नहीं लगता कि टेकिंग एडवांटेज ऑफ द वीकनेस ऑफ दिस पर्सन, हिज वेल्थ वुड बी स्नैच्ड बाय अ स्ट्रेंजर? होगा कि नहीं? टेकिंग एडवांटेज ऑफ द वीकनेस, हिज वेल्थ वुड बी स्नैच्ड अवे। वही चीज हुई थी, एंड दैट इज आर फर्स्ट फॉर्मूला। प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस। अगर आप कमजोर हैं तो खुशहाल कभी नहीं हो सकते। प्रॉस्पेरिटी कैनॉट सर्वाइव विद वीकनेस। एग्जाम्पल ये आप समझ रहे हैं? प्रॉस्पेरिटी कैनॉट सर्वाइव विद वीकनेस। तो अगर आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं, जस्ट टू डिस्कस मोर ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, द फर्स्ट फॉर्मूला, very important, prosperity cannot survive with weakness. Let's take another example. Now take up the condition of India in 1008 AD. What was the scenario back then when the 10th century began? Sorry, 11th century began, and 1008 AD was a time when Mahmud Ghazni invaded India, right? तो उस टाइम का सिनेरियो क्या था? टॉकिंग अबाउट द सिनेरियो इन 4 डिफरेंट एस्पेक्ट: पॉलिटिकल, सोसाइटी, एजुकेशन, इकोनॉमी। तो इस एग्जाम्पल में अगर आप देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था इंडिया का 1000 एडी में, 1008 एडी में, यानी 11th सेंचुरी में? एब्सेंस ऑफ पावरफुल अथॉरिटी। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। Political structure of India was weak because there was absence of powerful authority in India during the 11th century. Why? Because there was no king like Ashoka, there was no king like Akbar. Ashoka बहुत पहले था, अकबर अभी आया नहीं था। अशोका, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, रूलिंग ओवर 7,000 किलोमीटर्स ऑफ इंडियन टेरिटरी। अखंड भारत की जो बात थी कि एक रूलर है जो राजगद्दी से बैठ करके पूरी बहुत बड़ी टेरिटरी कंट्रोल कर रहा है, ऐसा नहीं था। ठीक है, अकबर के टाइम पर भी उसका जो रूल था, ही वाज सिटिंग एट द थ्रोन ऑफ आगरा। Between in time he went to Fatehpur Sikri also, but ruling from a place and controlling entire Indian subcontinent, almost Indian subcontinent. तो इस तरह का कोई बड़ा राजा उस टाइम नहीं था। उस टाइम छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 5,000 स्मॉल स्मॉल स्टेट्स। 2 गांव के राजा हैं और नाम है उनका पृथ्वीपति। इमेजिन, पीपल यूज्ड टू टेक टाइटल रूलिंग 2 विलेजेस एंड यूज्ड टू टेक अप द टाइटल ऑफ पृथ्वीपति, पृथ्वी के राजा हैं। तो इस तरह का कुछ सिनेरियो था। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत वीक था, कोई भी पावरफुल अथॉरिटी नहीं थी इस टाइम पर। ध्यान से समझिए, सोसाइटी का क्या हाल था? सोसाइटी वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम कास्ट सिस्टम। एंशियंट इंडिया में अगर आप देखोगे तो यू वुड गेट द रेफरेंस ऑफ वर्ण सिस्टम। वर्णा, वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वो मेडिवल इंडिया में कास्ट सिस्टम डोमिनेंट था, और इसी वजह से लोग यूनाइटेड नहीं थे, आपस में झगड़ा करते थे। इस वजह से सोसाइटी में दरार थी। दैट इज वाई सोसाइटी वॉज वीक। एजुकेशन का क्या हाल था? एजुकेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ culture of any country. It was stagnant and backward, as quoted by Al-Baruni. Al-Baruni was a traveler, a historian. He came in India with Mahmud Ghazni, 7 साल यहाँ रहा, संस्कृत उसने सीखी और इंडिया के बारे में
कई सारी चीज़ें उसने अपनी बुक किताबुल हिंद में लिखा था, और किताबुल हिंद से ही अगर आप देखें, उसका अगर रेफरेंस लिया जाए, तो वहाँ पे अल-बरूनी लिखता है कि इंडिया की जो एजुकेशन वो स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड है ना? इस वजह से इस वजह से अगर आप देखेंगे, तो जो स्ट्रक्चर था पूरा का पूरा इंडिया का उस टाइम पर, वो रॉटन था। इट वाज काइंड ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस, सोसाइटल क्राइसिस, एजुकेशन वाज स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड। तो इस सिनेरियो में अगर आप देखो, तो ये इंडिया तीन तरफ से वीक है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी। इट वाज अ लैंड ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। व्हाई? बिकॉज इंडिया वाज नोन एज गोल्डन स्पैरो। ये जो टर्म है, ये कुतबी ने क्वाइन किया था। कुतबी वाज आल्सो अ कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद गजनी, और उसने ये टर्म दिया था इंडिया को, गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया। तो ऑल्दो इंडिया वाज सफरिंग, इंडिया वाज वीक, बट इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी। एंड दैट इज व्हाई यू सी, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस, है ना? अगर आप कमजोर हैं तो आप प्रॉस्पेरस नहीं रह सकते। इसीलिए इस कमजोरी का फायदा उठा करके यहाँ की प्रॉस्पेरिटी टर्क्स ने छीनी थी। द अटैक ऑफ महमूद गजनी, मोहम्मद घोरी, they came, raided India, went back. Mahmud Ghazni raided India for 17 times. Now you can imagine the situation. और क्यों he was successful? इंडिया में कोई रोक नहीं पाया, इसी वजह से। I hope this example is clear to you. And if you can compare this, यहाँ हमने देखा 30 kg पैरालिसिस, ब्लाइंड फ्रॉम वन आई एंड हैव अ स्टैश ऑफ 10 करोड़ रुपीस। वही चीज आप देखो, 30 kg, blind from one eye, suffering from paralysis, and stash of 1 crore और 10 करोड़ रुपीस। वहां पे कोई आदमी इस आदमी को लूट करके ले जाएगा, यहाँ पे उस टाइम टर्क्स लूट करके ले गए। Just to give you another view of this topic, or of this analysis, this analogy, take an example of Central and West Asia in 2014. Now, you see, सेंट्रल वेस्ट एशिया का जो सऊदी अरेबियन की कंट्रीज का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो इस्लाम वाज बॉर्न इन 622 एडी, 7th सेंचुरी में इस्लाम आता है, एंड प्रॉफिट मोहम्मद गिव अ गिफ्ट ऑफ इस्लाम टू द वर्ल्ड। बट एक तरह से यूनाइट करने की उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन अगर आज का सिनेरियो अगर आप देखोगे, तो वहां पे जितनी भी रूलर्स हैं, सॉरी, जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, वो आपस में ही झगड़ रहे हैं। One country is fighting for the other for some personal aspirations or reasons. That is why you see political structure जो वेस्ट एशिया का है in present world, that is divided. Why? Take an example, Iraq Iran war. Iraq Iran war ये शुरू हुआ था 1980 में, 1988 तक आपस में ही झगड़ रहे हैं ईरान इराक दोनों। एक तरह से देखिए तो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, है ना? मोहम्मद साहब ने इस्लाम देकर के लोगों को यूनाइट करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, सीरिया आपस में झगड़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया डिड नॉट टेक द परमानेंट सीट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बिकॉज वर्ल्ड कम्युनिटी डिड नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट सीरिया। सऊदी अरेबिया सीरिया से नाराज है, ईरान इराक आपस में पड़ोसी हैं, झगड़ रहे हैं, है ना? तो यहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा डिवाइडेड है। तो यहाँ पे अगर आप इस एग्जांपल में देखो, यहाँ कोई पावरफुल अथॉरिटी, कोई राजा नहीं था। ओवर हियर यू सी दैट देयर इज नो पावरफुल स्टेट हु कैन नो लीड द एंटायर सेंट्रल वेस्ट एशियन रीजन। कोई भी स्टेट नहीं है जो लीड करे और एक एग्जाम्पल सेट करे कि हाँ, आई वुड बी इन चार्ज ऑफ दिस रीजन एंड वी वुड डोमिनेट द पॉलिसीज। कोई नहीं है। उसी तरह से अगर आप देखो, तो जो सोसाइटी है वहां पे, इट इज डिवाइडेड बाय सेक्ट, नॉट बाय कास्ट, बट बाय सेक्ट इन वेस्ट एशिया। कैसे सेक्ट? यानी शिया, सुन्नी, महदवी, कुर्द हैं सब मुस्लिम, फॉलो इस्लाम सब करते हैं, लेकिन सेक्ट में डिवीजन है। एजुकेशन इज स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड अगेन बिकॉज आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान इज द ओनली कंट्री जहां पे science and technology is taught in madrasas. Only one country in the world, in this region, Uzbekistan, where science and technology is taught. And it is said that education is an integral part of any human being.
अगर आपको अच्छी एजुकेशन मिली है तो उसकी वजह से तो आपकी पर्सनालिटी खुलती है। एंड पीपल इन दिस रीजन are being educated but in a different direction, not modern education but traditional education, जहाँ पे उनको भटकाना आसान हो गया है। And that is why you see nuisance being created in these regions in present times. तो पॉलिटिकली भी सफर कर रहे हैं, सोसाइटी भी सफर कर रही है, एजुकेशन अच्छी है नहीं, जो यूथ है वहाँ का, जो ह्यूमन रिसोर्स है वहाँ का, वो भी सफर कर रहा है। एंड ये सारी की सारी वीकनेस के बीच में यहाँ पे अगर आप देखो तो दिस रीजन इज नोन फॉर व्हाट, रिजर्वायर ऑफ ऑयल। तो जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने, महमूद गजनी ने इंडिया की वीकनेस का फायदा उठा करके अटैक किया था, उसी तरह से अमेरिका अटैक ऑन दिस रीजन टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस weakness of Central West Asia. Particularly two people, George Bush and Barack Obama. George Bush came with pipeline in one hand, missile in other hand, और बोला भाई ये लगा जितना तेल है, जितना ऑयल है, सब मुझे दो। Threatened them, took advantage of their prosperity. सारा का सारा तेल लेकर के जॉर्ज बुश, उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास इंडस्ट्री तो है नहीं, मशीनरी है नहीं, इतना तेल रखे हो, ऑयल रखे हो, कहाँ डालोगे? मदरसे में डालोगे, हमें दे दो। एंड दैट इज व्हाई यू सी अमेरिका स्नैच द प्रॉस्पेरिटी ऑफ दिस रीजन। तो आई होप कि आपको ये एनालॉजी समझ में आ गई होगी। वेट 30 kg, पैरालिसिस, ब्लाइंड फ्रॉम वन आई, एंड बैग ऑफ 10 करोड़ रुपीस कैश। और यहाँ पर भी प्रॉस्पेरिटी वीकनेस की वजह से नहीं बची। तो आई होप कि आपको ये जो फॉर्मूला है ये समझ में आ गया हो। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वीकनेस कैनॉट सर्वाइव विद प्रॉस्पेरिटी, सॉरी, प्रॉस्पेरिटी कैनॉट सर्वाइव विद वीकनेस। अगर आप कमजोर हैं तो खुशहाल नहीं हो सकते। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच इज यूटिलिटी इज इक्वल टू इंपॉर्टेंस। अब यूटिलिटी इंडिया की थी, इसी वजह से इंडिया की इंपॉर्टेंस भी थी। अगर आप देखो तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर गोल्डन स्पैरो जो थी, ये एक कॉइन था जो कि उत्तरी ने टर्म किया, और धीरे धीरे इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी थी उसकी खबर पूरी दुनिया में फैलने लगी। सबको पता चलने लगा कि इंडिया काफी प्रॉस्पेरस है, यहाँ पे जो मंदिर है उसमें सिक्के भर भर के रखे हुए हैं। एंड दैट इज व्हाई एवरीबडी इन द वर्ल्ड इन दैट era of medieval India wanted to attack and snatch the prosperity of India because of its weakness। और आगे भी अगर आप देखोगे तो 18th सेंचुरी में जितने भी यूरोपियन कंपनीज आए थे, everybody came and in the they had personal agendas, they had personal ambitions, but they wanted wealth of India। और इंडिया अपनी वीकनेस की वजह से ही एनस्लेव हुआ था बाय द ब्रिटिशर्स लेटर ऑन, है ना? क्योंकि इंडिया की यूटिलिटी थी इसीलिए उसका इंपॉर्टेंस था। जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला आई वुड गिव यू एन एग्जांपल। सपोज आप अपनी बॉडी पार्ट्स को ही ले लो, ठीक है? Just to understand this formula, take your body parts, kidney, liver, heart, brain, ठीक है? किडनी अगर किसी की खराब होती है, इफ किडनी स्टार्ट्स माल फंक्शनिंग, तो डायलिसिस हो सकती है। अगर डायलिसिस पॉसिबल नहीं है तो किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो अगर किडनी माल फंक्शन करे तो इट कैन बी रिप्लेस्ड, पॉसिबिलिटी है, राइट? लिवर अगर खराब होता है तो लिवर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है ना? बट इफ यू सी टॉक अबाउट योर ब्रेन, अगर दिमाग खराब नहीं होता, अगर दिमाग काम करना बंद कर देता है, इफ दैट ऑल्सो फंक्शंस या स्टॉप्स, द ऑक्सीजन फ्लो स्टॉप्स, तो आदमी कोमा में चला जाता है, बट ही कैन स्टिल सर्वाइव। मरेगा नहीं, कोमा में रहेगा बट मरेगा नहीं। लेकिन अगर दिल रुक गया, इफ द हार्ट स्टॉप्स, द पर्सन वुड डाई इमीडिएटली विद कार्डियक अरेस्ट। बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी में कौन सा ऑर्गन रहा इमीडिएट इफेक्ट के साथ? हार्ट। तो हार्ट की यूटिलिटी है बॉडी में, इसीलिए उसको इंपॉर्टेंस है। कैसे? बॉलीवुड में जितने गाने सुनते हो इस पे लिखे जाते हैं, तुम दिल की धड़कन में रहते हो,
कभी सुना है कि तुम मेरी किडनी में रहते हो? यू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ट बिकॉज ऑफ इट्स यूटिलिटी. आई होप यू गेट द एग्जाम्पल इन अ वेरी क्रूड वे, बट क्योंकि इंडिया की यूटिलिटी थी, पैसा भर भर के था, इसलिए इंपॉर्टेंस थी. तो यूटिलिटी इज इक्वल टू इंपॉर्टेंस. आपको इज्जत तभी मिलेगी जब आपकी जरूरत होगी. राइट. सो इंडिया इसी वजह से कई सारे इन्वेजन की सीरीज में आके फंस जाता है. यू वुड सी कई सारे ऐसे इन्वेडर्स थे जो इंडिया में अटैक करते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से. कई सारे इन्वेडर्स होंगे जो वापस चले जाएंगे, कई सारे होंगे जो आकर यहाँ सेटल होंगे. एंड दिस इज एन एग्जाम्पल नो ऑफ द इन्वेडर्स हु केम टू इंडिया वन आफ्टर द अदर. नॉट नो, इसके बीच में भी कई सारे और भी थे, लेकिन आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल. सो इंडिया was under series of invasions because of its utility and its importance. Aryans शुरू में आए, ancient India, Shakas like रुद्रदमन, वेरी इंपॉर्टेंट रूलर. कुशांस में आप कनिष्क को जानते होंगे. हून्स कई सारे थे. टर्क्स में महमूद गजनी, मोहम्मद घोरी, टू इंपॉर्टेंट पर्सन. मंगोल्स में चिंगेज खान. चिंगेज खान attacked India 1296. Also तैमूर लीम 1398. मंगोल्स ने अटैक किया ईरानीज, है ना. नादिर शाह 1739. अफगानीज अहमद शाह अब्दाली. एंड टुडे आतंकवादीज अजमल कसाब. एंड बिकॉज ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया, है ना. ये लगातार सीरीज ऑफ इन्वेजन जो चल रहे हैं, ये हो किस लिए रहे हैं? बिकॉज ऑफ यूटिलिटी एंड इंपॉर्टेंस. और आसान क्यों है? बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ इंडिया. आई होप यू गॉट द कंसेप्ट. ठीक है. अब ये जो इन्वेडर्स थे, ये सारे इन्वेडर्स, ये जो मैंने लिस्ट आपको दिखाई, ये सारे इन्वेडर्स ये दो तरह के हुआ करते थे. ठीक है. कुछ जो अपने होम कैडर में सक्सेसफुल थे, कुछ हु वर नॉट सक्सेसफुल इन देयर पर्टिकुलर होम कैडर. अब कैडर, आई होप आप समझते हो, कैडर इज काइंड ऑफ पोस्टिंग, होम पोस्टिंग. तो होम कैडर मतलब जहां पे आप बिलोंग करते हो, वहीं पे आप काम कर रहे हो. सपोजिंगली आपकी जॉब लग जाती है and you join as a IAS, you would of course want to join जहाँ कहीं भी आपका घर हो, वहाँ पे आप कोशिश करोगे वहाँ पोस्टिंग मिल जाए. क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है कि जितने लोगों ने आपको ज़िंदगी भर परेशान किया, वो दिखाना भी ज़रूरी रहता है, बदला लेना है. तो जितने लोगों ने ज़िंदगी भर आपको परेशान किया, अब जब आप पावर में आ गए हो तो फिर उसका फ़ायदा भी लोगे. और ये चीज़ रहती है. Till the time you are not in power, you would be suppressed. But the moment you are in power, you can suppress. Personal opinion. क्योंकि जब कभी भी आप कहीं भी रहते हो, नो, these invaders also, they also had different problems and issues in their homeland. तीन तरह के लोग होते हैं जो आपको परेशान करेंगे. There are only three kind of people who would trouble you. One, your friends. Second, your neighbors. Third, your relatives. पड़ोसी, दोस्त और रिश्तेदार. ये तीन लोग आपको जिंदगी में परेशान करेंगे. बाकी सड़क चलते किसी चौथे आदमी के लिए आप परेशान नहीं होंगे. यू वोंट बॉदर अबाउट द फोर्थ पर्सन वॉकिंग ऑन द रोड. यही तीन लोग परेशान करते हैं. और इसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक रिलेटिव्स. एंड ऑल्सो द नेबर्स, इफ यू सी, चले आएंगे, देख रहे होंगे क्या पढ़ रहे हो, बेटा क्या कर रहे हो, अंकल तैयारी कर रहे हैं. किसकी? यूपीएससी की. एंड देन यू सी द टेंशन ऑन देयर फेस. बचपन से अपने बेटे को की बड़ाई की है, तारीफ की है, हमेशा कंपेयर किया है. एंड नाउ ही इज हियरिंग दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. राजा बनने की कोशिश कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो. वो टेंशन विजिबल हो जाती है. और फिर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली दे ट्राई टू डाइवर्ट योर माइंड ताकि आप ना बनो. और फिर आपको आपका ब्रेन वॉश करते हैं.
आके बैठ जाएंगे। बेटा 750 सीट है, 7.5 लाख लोग अप्लाई करते हैं एग्जाम में। सी द रेशियो, नॉट इवन 1%। बहुत मुश्किल है बेटा, नहीं हो पाएगा। इट्स देयर मॉरल एंड रिलीजियस राइट टू डिस्ट्रैक्ट यू। आपको उस टाइम चुप रहना, यू जस्ट हैव टू बी साइलेंट एंड लिसन टू देम। Don't react because you are not in power. The moment you come in power, then that is a different scenario. जिस दिन उनको पता चला आपका प्री हो गया, टेंशन दिख रही है फेस पे, लेकिन फिर तो बोलेंगे कुछ नहीं, और इनडायरेक्टली दिमाग भटकाने के लिए, अरे प्री में हुआ है ना, मेंस में सबका नहीं होता है। एंड देन वन डे योर मेंस रिजल्ट इज आउट एंड यू से कि अंकल मेंस में भी हो गया, एंड देन यू सी द टेंशन ऑन देयर फेस, आप कांप रहे होंगे। और जिस दिन आपका इंटरव्यू हो गया एंड यू आर सेलेक्टेड इन द इंटरव्यू, देन ही वुड कम, अरे बेटा रोते हुए, बहुत अच्छा लगा, बचपन से मैं जानता था तुम्हारे अंदर काबिलियत है, मैं चाहता था, मैं जानता था कि तुम बहुत इस काबिल हो, तुम आईएएस बन के दिखाओगे। नहीं उठ से कि ठीक है अंकल, ये बताओ रो क्यों रहे हो? बोले बेटा खुशी के आंसू हैं। वो आंसू किसके होते हैं वो पता रहता है सबको एनीवेज। तो दैट इज व्हाई यू सी सोसाइटी एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट्स यू whenever they get a chance. And the biggest harm to a talented mind is distraction. Biggest harm to a talented mind is distraction. जहां आप डिस्ट्रैक्ट हुए आप बर्बाद हो जाओगे। You just have to maintain your focus, right? So talking about this cadres, तो कुछ ऐसे राजा थे जो अलग अलग एरिया से इंडिया में माइग्रेट किए थे, राइट? सो some of them were successful back there in their hometowns, and some tried to settle in India. डायग्राम पता नहीं इसमें बन पाएगा कि नहीं, इस तरह से आई एम गिविंग यू अ रेफरेंस। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, आई होप इंडिया ही लग रहा है। सो कई सारे इन्वेडर्स इधर से ही आया करते थे। द रीजन व्हाई दे यूज्ड टू कम फ्रॉम दिस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इज दैट यहाँ पे अरेबियन सी था, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल था, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ मेडिवल इंडिया, अर्ली मेडिवल इंडिया 7th सेंचुरी, जो शिप्स थी वो इतनी डेवलप नहीं थी, इतनी एडवांस नहीं थी टू सेल इन डीप ओशंस। तो यहाँ से अटैक पॉसिबल नहीं था, यहाँ हिमालयन रीजन थे, तो इधर से पॉसिबल नहीं था हिमालय को क्रॉस करना। और इसी वजह से अगर आप देखो तो सारे के सारे अटैक, मेजोरिटी ऑफ अटैक्स वर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इधर राजस्थान और गुजरात का जो रीजन है, पंजाब कश्मीर का, ये इधर की तरफ से। तो इन्वेडर्स आया करते थे, द वंस हु वर हैप्पी इन देयर होम्स दे केम, लूटेड इंडिया, वेंट बैक। ठीक है, जनरल फिनोमिना, सक्सेसफुल होम कैडर, इन्वेडेड इंडिया, वेंट बैक टू देयर नेटिव लैंड। कुछ ऐसे थे जो अपने जहां पे वो नेटिव थे, जहां रहते थे, वहां खुश नहीं थे, एंड दे वर लुकिंग फॉर डिफरेंट रीजन्स टू सेटल डाउन, है ना? एंड दैट इज व्हाई व्हेन दे हर्ड अबाउट इंडिया दे केम, लूटेड इंडिया एंड स्टेड हियर। You see example of Mahmud Ghazni, successful in his home cadre, Ghazni, south of Kabul, Afghanistan, आया लूटा वापस चला गया। Muhammad Ghori never tried to settle over here, but then went back again. Nadir Shah, again Afghani invader, Ahmad Shah Abdali, कई सारे examples हैं, people who were successful in their home cadre, never settled in India. जो लोग सक्सेसफुल नहीं थे वो आकर के इंडिया में सेटल होते हैं। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, बाबर। ही वॉज फ्रॉम अ स्मॉल रीजन ऑफ उज्बेकिस्तान, फरगना की एक एरिया था उज्बेकिस्तान इधर कहीं, और वहां पे उसके चाचा ने उसे हरा करके खदेड़ दिया था। हिज ओन अंकल डिफीटेड हिम, बिट्रेड हिम एंड थ्रू हिम
from his kingdom. He was the regal heir to the throne of Umar Sheikh Mirza, but then he was thrown away. And then he later settled down in Kabul and then comes to India and then rules from Delhi and Agra. Because he was not successful at his home, that is why these type of ruler invaded India and settled in India. I hope this point is clear to you. All right. The third formula, your दो formulae, I hope these two formulas are clear to you. Prosperity cannot survive with weakness and utility is equal to importance. Now, the third formula. West cannot survive without East. Again, West cannot survive without East. इस चीज को बहुत ध्यान से समझना. ये जो चीज है इसकी वजह से मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इम्पैक्ट हुई है and some of the few events under this actually changed the history of entire India. अगर आप देखो इस मैप पे तो आप देखोगे दिस रीजन, ये रीजन है इक्वेटर का, थोड़ा सा गलत बन गया. दिस इज द रीजन ऑफ इक्वेटर, दिस इज द रीजन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and this is the region of higher altitudes. ठीक है. So if you see ये जो region है between equator and tropic of cancer, this region entirely, this is a region of moderate climate जहाँ पे agriculture 12 months के लिए possible होता है because of rainfall, ample rainfall and also the climatic condition of this region. बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है. But talking about this region of Europe, particularly this region, if you see this region, यहाँ पर almost 8 months out of 12 there is snow, and this region alone suffers because यहाँ पे बर्फ जब गिरी हो तो agriculture possible नहीं. You cannot grow plants, produce ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द विंटर. और यहाँ एक बहुत शॉर्ट विंडो रहता है अबाउट 3 to 4 months का. इस वजह से अगर आप देखो तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, द पीपल हु आर लिविंग ओवर हियर हैव टू सर्वाइव एनी हाउ, इवन इफ दे कांट प्लांट फॉर मोर देन 3-4 years और 3-4 months, then too they have to survive for a year. खाने के लिए लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है. ग्रेन्स को जो है उनको प्रिजर्व करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपने मान लीजिए मे बी जुलाई से लेकर के सितंबर तक आपने खेती की, बाकी टाइम क्या? बाकी टाइम पे भी तो खाना जरूरी है. एंड दैट इज व्हाई दे वर इन नीड ऑफ प्रिजर्वेटिव्स बाय विच दे कैन प्रिजर्व दीज ग्रेन्स ग्रोन इन द समर हार्वेस्ट. ठीक है. The best kind of preservative were spices. अब spices मिलते कहाँ थे? इधर के रीजन में, इंडिया, केरला, स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया, स्पाइस स्टेट ऑफ इंडिया, है ना. These region, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, these areas of East Indies, Papua New Guinea, all these Philippine regions. ये सारा का सारा ये जो रीजन है, दिस वाज द प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस. यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है. इस वजह से आपको नहीं लगता कि यहाँ पे एक ट्रेड लिंक अगर बन जाए तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ तक पहुंच सकती हैं. एंड दैट वाज द रीजन ऑफ इनिशियल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड रूट्स. ये जो रेड लाइन में आप देख रहे हो, दिस इज crude silk route which you can see from China up to Europe. ये जो ब्लू में लाइन आप देख रहे हो, ब्लू लाइंस, ये सारे के सारे कोस्टल ट्रेड रूट्स हैं. ये लैंड रूट, दिस इज द सी रूट फॉर ट्रेडिंग. यहाँ सोर्स है, यहाँ रिक्वायरमेंट है. इसको फैसिलिटेट करने के लिए कुछ इनिशियल ट्रेड रूट्स बन गए, जिसमें से एक सबसे मेजर जो था वो था सिल्क रूट. सिल्क रूट का नाम सिल्क रूट इसलिए पड़ा क्योंकि द मेजर कमोडिटी विच वाज बीइंग ट्रेडेड ऑन दिस रूट वाज सिल्क फ्रॉम चाइना, जो कि यूरोप में बहुत पॉपुलर था. ठीक है. अब क्योंकि 3-4 महीने तक you might have heard of the term of hibernation. You see house lizard,
सर्दी के टाइम पे आपको नहीं दिखाई देगी। जो छिपकली होती है, you can't see house lizard during the time of winter. It is only visible during the time of summer, क्योंकि वो हाइबरनेट कर लेते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ना। तो ये सारा का सारा फिनोमिना यूरोप में बहुत डोमिनेंट है, और वहां पे जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा तो हार्श है। और अगर इसी वजह से अगर आप देखो, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से जब ग्रेन्स मान लो जिसके पास हैं वो मिल गए, लेकिन आगे चल करके सपोजिंगली ये जितनी भी रिक्वायरमेंट थी यहाँ मान लीजिए नहीं उसको प्रिजर्व कर पाए, ग्रेन खराब हो गए, भीग गए, खराब हो गए, सड़ गए, कुछ भी हुआ, एंड दैट इज वाई दे हैव टू डिपेंड अपॉन अनदर सोर्स ऑफ फूड, एंड दैट इज वाई यू सी यूरोप में हंटिंग एंड फिशिंग बहुत ज्यादा होती है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ द फूड एंड द वेरी नेचर दैट इट माइट नॉट बी अवेलेबल and they can't depend on food grains only. That is why they started hunting and fishing. वहां पे इसीलिए आप देखोगे यूरोप के रीजन में, वेस्ट वर्ल्ड में नॉन वेजिटेरियंस ज्यादा है। इंडिया में ये चीज नहीं है। इंडिया में तो पानी की कमी नहीं, नदियां बहुत सारी हैं, खाने की कमी नहीं, यू हैव एम्पल एग्रीकल्चरेबल लैंड, एग्रीकल्चर जहाँ आप कर सकते हो, कल्टिवेबल लैंड, साथ ही साथ पेड़ पे फल उगा हुआ है, आप तोड़ के खा लो। तो यहाँ किसी चीज की कमी थी नहीं, ना खाने की ना पानी की, एंड दैट इज वाई, क्योंकि बर्फ भी नहीं गिरती, एंड यू कैन हार्वेस्ट आइदर क्रॉप्स इन रोटेशन ड्यूरिंग द एंटायर 12 मंथ्स। तो यहाँ पे खाने पीने की दिक्कत हुई नहीं, इसलिए वी आर डिपेंडेंट मोर ऑन फूड ग्रेन्स, इसलिए यहाँ पे इंडिया में वेजिटेरियन ज्यादा है। अब आदमी खा के बैठा है ना, पेट भरा, यहाँ लोग भाग रहे हैं यूरोप में, पीपल आर रनिंग आफ्टर एनिमल्स, बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, दौड़ भाग कर रहे हैं। यहाँ पे आराम की जिंदगी जी रहे हैं लोग, दे डोंट हैव टू हंट, दे डोंट हैव टू रन अराउंड। आम तोड़ा, खा लिया, 25 आम खा गए एक साथ, पेट भरा है, बैठे हैं। अब पेट भरा है, कुछ करना नहीं है, तो क्या करेगा आदमी? आंख बंद करेगा। जब आंख बंद करता है तो क्या याद आता है? भगवान, है ना। और इसी वजह से आप देखोगे इंडिया में योग स्टार्ट हुआ, because people were not involved in different kind of activities which were prevalent over here, because people were satisfied, people had ample food to eat everything। और इस वजह से आप देखोगे यहाँ पे आध्यात्म की शुरुआत होगी, योग की शुरुआत होगी, क्योंकि आदमी शांति से बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो फॉर्मूला के बारे में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, वेस्ट कैनॉट सर्वाइव विदाउट ईस्ट, अब ये चीज आप समझिए, ध्यान से सुनिएगा, वेस्ट कैनॉट सर्वाइव विदाउट ईस्ट बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस। ये समझ में आ गई? ऑलराइट, नाउ द फोर्थ फॉर्मूला, ये तीन हम देख चुके हैं, वेस्ट कैनॉट सर्वाइव विदाउट ईस्ट बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस। नाउ द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये सारी की सारी चीजें अगर आप देखो तो आपको लग रहा होगा कि हिस्ट्री में कब से फॉर्मूले आने लगे, बट बिलीव मी और नॉट, if you understand these four core formulas, you would understand entire history, ancient, medieval, modern world। आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। जस्ट बी विद मी, आई एम जस्ट गिविंग यू द बैकग्राउंड ऑफ द एंटायर मेडिवल इंडिया। आपको ये जो चीज़ें समझा रहा हूँ, ये सिल्क रूट और ये सारे रूट्स वगैरह, ये फिनोमिना, ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये बहुत काम आने वाली हैं आगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। अब इसको बहुत ध्यान से सुनना, किसी भी रीजन की इकोनॉमी अगर स्ट्रांग नहीं है तो वो रीजन या स्टेट भी स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। आर यू गेटिंग दैट? अगर स्टेट सुपर पावर बनना है उसे, तो उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए। टेक द एग्जांपल, सुपर पावर इन टुडेज वर्ल्ड, अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया, इकोनॉमी स्ट्रांग है तभी तो। इसी तरह से मेडिवल पीरियड की अगर हम बात करें, तो जो कोई भी डायनेस्टी या एम्पायर हुआ करता था, उसके पास इकोनॉमिक
रिफॉर्म्स करना बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके पास ट्रेजरी होनी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अगर ट्रेजरी होगी तभी, ये ट्रेजरी आएगी कहाँ से? मोस्ट इंपॉर्टेंटली टैक्स। ट्रेजरी होगी तभी आप रिफॉर्म्स कर सकते हो, अलग अलग योजना बना सकते हो। ट्रेजरी होगी तभी आप आर्मी को पे कर सकते हो। ट्रेजरी होगी तभी आप वेलफेयर एक्टिविटीज कर सकते हो। तो टैक्स एंड इकोनॉमी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एम्पायर टू राइज। सम पॉपुलर एग्जाम्पल्स इसी फॉर्मूले को कनेक्ट करने के लिए, वाई वी रिलेट इकोनॉमी विद एम्पायर, ये चीज आप अगर आप देखो, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस जेंटलमैन्स नेम, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, है ना? ही रोट अ बुक नेम्ड अर्थशास्त्र। अब इस वर्ड को देखो आप, अर्थ, अर्थ मीन्स अर्थव्यवस्था, मीन्स इकोनॉमी। एंड इफ यू नो the objective or the content of this book is what? This is related to administration, about an empire. तो ये जो टर्म है, लिटरल मीनिंग इज इकोनॉमी एंड कंटेंट इज ऑफ एम्पायर। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? ठीक है। उसी तरह से अलेक्जेंडर जो था, इन्वेजन 326 BC, 324 तक वापस चला भी गया था, लेकिन अलेक्जेंडर का दुनिया पे कब्जा करने का तो सपना था ही, लेकिन वन ऑफ हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वाज आल्सो टू सर्च फॉर स्पाइसेस। जिस तरह से जॉर्ज बुश और बैरक ओबामा केम टू वेस्ट वर्ल्ड फॉर इन सर्च ऑफ स्पाइस, इन सर्च ऑफ ऑयल, उसी तरह अलेक्जेंडर केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ स्पाइसेस। कब्जा करना था, वन ऑफ हिज इंपॉर्टेंट मोटिव वाज आल्सो स्पाइसेस। तो इकोनॉमी भी तभी बनेगी जब आप स्पाइसेस का ट्रेड करोगे, और ये क्यों चीज़, क्योंकि यूरोप में बहुत ज़रूरी थी, इस वजह से ये भी उसको काफ़ी हेल्प कर लेता। ऑल्सो टेकिंग द थर्ड एग्जाम्पल, ब्रिटेन। Industrial revolution happened over there in 1750s, and before 1750s Britain was known as Britain. Industrial revolution जब पीक पे पहुंचा 1850s में, then you see a new term being given to Britain, that is British Empire. Because of industrial revolution ब्रिटेन की इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई, और इसी वजह से ब्रिटिश एम्पायर बना था। Now I hope this economy is equal to empire. This formula is clear to you. This is a very important formula. I would use this every now and then in the entire course of history. Now, ये जो एम्पायर है, ये जो चीज़ें हैं, जो मैंने डिस्कस किया था आपसे, ये वाला जो रूट था, ये ट्रेड फेलिसिटेशन की जो बातें थी, ये हुआ कैसे? A very important background for medieval India. Please, I need your concentration over here. I need your attention. इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर की वजह से अगर आप देखो, तो कुछ सी रूट्स थे जो इस चीज़ को फैसिलिटेट कर देते, कुछ लैंड रूट्स थे जो इसको फैसिलिटेट करते थे। इसके बारे में देखा था। पर्शियन गल्फ वॉज अ लिंक फ्रॉम अरब टू इंडिया, रेड सी वॉज अ लिंक फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। देख लेते हैं इसको। ये वाला जो रीजन है, इफ यू कैन सी, ये वाला जो रीजन, this region is of Red Sea, which was a link to from Europe. If you can see this pointer, change कर लेता हूँ। If you can see, ये यूरोप का लिंक फ्रॉम हियर, सॉरी, यूरोप का लिंक फ्रॉम हियर क्रॉसिंग द सुएज कैनाल विच वॉज डेवलप्ड लेटर ऑन। यहाँ से ये लिंक जो था, ये रेड सी से होते हुए इंडिया की तरफ था। ठीक है। दूसरा रीजन ये वाला था, दिस इज द पर्शियन गल्फ, एंड दिस वाज द इंपॉर्टेंट लिंक फ्रॉम अरब वर्ल्ड टू इंडिया। तो ये दो सी रूट हुआ करते थे इंपॉर्टेंट, एक ये, एक ये। ठीक है। लैंड रूट, इफ यू टॉक अबाउट लैंड रूट, देयर वर थ्री इंपॉर्टेंट लैंड रूट्स। सिल्क रूट मैंने आपको बताया, मंगोलिया टू यूरोप। उत्तरापथ ये इंडिया में था, द नॉर्दर्न पाथ, तक्षशिला टू ताम्रलिप्ति, दक्षिण पथ फ्रॉम उज्जैन टू देवगिरी। ये दोनों जो रूट्स थे, ये दोनों जो रूट्स थे, ये इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सिल्क रूट, इसको अगर आप देखें मंगोलिया टू यूरोप, तो ये वाली जो ब्राउन लाइन आपको दिख रही है, दिस इज द सिल्क रूट विच इज गोइंग फ्रॉम डिफरेंट रीजन, अलग अलग जगह डिवाइड हो जाती है और फिर मर्ज हो जाती है, एंड दिस वुड
go from here, it would enter into the region of west. ये जो इस्तांबुल का रीजन आप देख रहे हो, इसे उस टाइम कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था, और कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद फिर आगे चल करके ये यूरोप की तरफ बढ़ जाती थी। तो ये तो 100 AD तक की बात है, लेकिन इसके बाद ये एक्सटेंड हुई थी और थोड़ी वेस्ट में। एंड दिस रीजन ऑफ इस्तांबुल, प्रेजेंट डे इस्तांबुल, वाज नोन एज कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि उसका जो तीसरा नाम था वो बाइजेंटियम था, जो कि रोमन्स उसे बुलाया करते थे। तो इफ यू जस्ट गेट द आइडिया, तो ये वाली जो लाइन है, ये पूरी, ये ब्राउन वाली, ये सिल्क रूट हुआ करता था। दूसरा हमने नाम देखा उत्तरापथ का। उत्तरापथ ये वाला था, देखिए, तक्षशिला से ताम्रलिप्ति, दिख रहा है आपको? ताम्रलिप, कैलकाटा के जस्ट बगल में, फ्रॉम तक्षशिला टू ताम्रलिप्ति। एंड दिस एक्चुअली, ये जो उत्तरापथ है, दिस इज टुडे नोन एज जीटी रोड। एक टाइम था शेर शाह सूरी का, जब इसे, इसी उत्तरापथ को, इस रूट के अलग अलग नाम थे। एंशिएंट इंडिया में उत्तरापथ कहा गया, मिडिवल इंडिया में शेर शाह सूरी के टाइम पे इसे सड़क ए आजम कहा गया। मुगलों ने इसको एक्सटेंड किया था, उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इसी रूट को जीटी रोड कहा। दक्षिण पथ जो था वो दूसरा था, जो कि लिंक था सेंट्रल एंड साउथ इंडिया का, उज्जैन टू देवगिरी। उज्जैन इधर और देवगिरी इधर। जस्ट कैन सी दिस, ये देखिए, ये तक्षशिला है और ये राजगृह, जो कि मगध की कैपिटल थी एक टाइम पे। पाटलिपुत्र, राजगृह, ये सारा का सारा एक ही जगह का नाम है, नियर गया, और ये बाद में एक्सटेंड होकर के ताम्रलिप्ति तक आ गई थी। अगर आप देख सकते हैं यहाँ, ये उज्जैन है। उज्जैन से लेकर के ये जो प्रतिष्ठान है, इसके नीचे जो आज का पुणे है, वहां देवगिरी था। पहले देवगिरी, बाद में दौलताबाद, बाद में पुणे। तो एक ही शहर के कई सारे नाम है, उज्जैन टू देवगिरी, ये साउथ और ये नॉर्थ। और इस तरह से इन सब रोड्स को लिंक कर दिया जाता था। और इसी तरह से अगर आप देखोगे तो ये जो रोड्स हैं, ये लिंक होकर के कहीं ना कहीं जा करके ये सिल्क रूट पे मिल जाया करती थी। तो दिस वाज काइंड ऑफ एन इंटरनेशनल हाईवे एंड दिस वाज काइंड ऑफ नेशनल हाईवे। आई होप यू गॉट द जिस्ट ऑफ द सी रूट्स एंड द लैंड रूट्स। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। ये वही है आज का कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल, द एंशिएंट रूट्स इन प्रेजेंट डे सिनेरियो। ये नॉर्थ पेशावर से लेकर के जो चंडीगढ़, लाहौर, अमृतसर वाला जो रूट है, ये NH1 एंड NH2, ये वही चीज़ है जिसे आज जीटी रोड बोला गया, पहले उत्तरापथ कहा जाता था। और ये उज्जैन से लेके ये दौलताबाद, अगर आप देख रहे हो, दौलताबाद वाज अ नेम गिवन टू पुणे, और जो पहले देवगिरी था फिर दौलताबाद कहा गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, और बाद में से पुणे कहा गया। ये वही है अजंता केव्स के पास। ठीक है, तो ये दक्षिण पथ, ये उत्तरापथ। Now, a very important event actually happened in the 7th century, and that was the birth of Islam in this region. It was a very remarkable feature which I would discuss later on in this lesson, है ना? लेकिन ये जो रीजन था, दिस रीजन इज टुडे नोन एज सऊदी अरेबिया, ये वाला, ये अरब का जो रीजन है, इसका पहले जो ओरिजिनल नेम था वो था हिजाज। आगे चल करके मोहम्मद इब्न सऊद की वजह से इसे सऊदी अरेबिया कहा गया, मक्का मदीना। वहीं पे ही मोहम्मद साहब थे, 570 में बॉर्न हुए, एंड देन इन मक्का, एंड देन ही स्टार्टेड मेडिटेटिंग, एक तरह से साधना की उन्होंने अलोन बैठ करके। हीरा केव्स का एक एरिया है, वहाँ पर बैठ करके उन्हें वो एक तरह से एनलाइटनमेंट मिला, और उसके बाद फिर he gave the gift of Islam in 622 AD, that is 7th century। लेकिन हम ये जो बात कर रहे हैं, जो बैकग्राउंड है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस्लाम के बारे में डिटेल में आगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप ये समझिए कि 622 में यहाँ पर इस्लाम आ गया था इस रीजन में। ठीक है, क्रिश्चियनिटी वॉज देयर आफ्टर जीसस। ठीक है, तो करीब 650 साल से ऑलरेडी क्रिश्चियनिटी इस रीजन में प्रिवालेंट थी। तो बस इसको आप समझिए, यहां पर क्रिश्चियनिटी है, इधर अब अगर आप देखोगे तो इस्लाम बढ़ रहा है। इस्लाम भी एक्सपैंड होगा, मतलब इस्लामिक रीजन्स भी एक्सपैंड होंगे बाय द प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम थ्रू सूफीज एंड द रूलर्स। धीरे धीरे इस्लाम का जो एरिया है वो धीरे धीरे बढ़ेगा,
क्रिश्चियन रूलर जो हैं वो भी आके इन एरियाज को कॉन्कर करेंगे, और एक तरफ से आप देखोगे इधर से क्रिश्चियंस आ रहे हैं, इधर से मुस्लिम्स आ रहे हैं, और इस वजह से आप देखोगे एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। And that event was called as crusade. It was called as a holy war, लेकिन there was nothing holy in it. इसमें कुछ भी ऐसा holy नहीं था। This was called as a clash between cross and crescent. लेकिन ऐसा कुछ नहीं था. This was not the clash between the religions. It was actually a clash between the follower of the religions. ठीक है? तो crusade between the Christians and the Muslims of these regions. Christian rulers and the Turks following Islam. ये इवेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पूरी दुनिया की हिस्ट्री चेंज होने वाली है। द ईयर इज 1453, अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। और वो जो इवेंट था दैट वाज द टर्क ऑक्यूपाइड कॉन्स्टेंटिनोपल ऑन सिल्क रूट नियर इस्तांबुल। जो आज का इस्तांबुल है उसे पहले कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था, जिसे हिंदी में कस्तुनतुनिया कहा जाता है। उस एरिया पर ये कब्जा करके बैठ गए, जो कि सिल्क रूट का एक पार्ट था। अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, मैंने बताया था ये चीज आगे एक्सटेंड होकर के इस तरफ जाती है यूरोप में। ये इस्तांबुल का रीजन, तो ये जो रूट था यहाँ पर ये आकर के बैठ गए। The Turks expanded their regions and then conquered this area. अब जो सिल्क रूट है उसके बीच में इन्होंने कब्जा कर लिया, एंड दे स्टॉप्ड द ट्रेड ऑन दिस रूट। फायदा क्या था और इन्होंने किया क्यों? इफ आई कैन एक्सप्लेन यू दैट, इन लोगों के कुछ पर्सनल एम्बिशंस हुआ करते थे, खास करके पैसा वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। आपको वो चीज समझ में आई हो, आ गई होगी। तो इकोनॉमी और एम्पायर का क्या रिलेशन है वो चीज आप जानते हैं। इन्हें पैसे की जरूरत थी क्योंकि इफ यू सी दी the situation of these regions in present day scenario, they are not very much, no, so they are not very much strong। कल्चर के बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ, इकोनॉमी के बेसिस पे कह रहा हूँ। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इधर के जितने वेस्ट एशियन रीजन्स हैं, तो कुछ ऐसा ही हाल उस टाइम रहा करता था ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। और यहाँ पे जितने भी रूलर्स थे, दे वर लुकिंग to expand their empire, also in search of money for their personal political ambitions। अब सिल्क रूट जो था एक बहुत अच्छा मीडियम था पैसा कमाने का। कैसे? आप मान लीजिए जैसे कहीं जाते हैं, सपोज यू embark on a journey, and you are driving a car and then you stop on a toll on a national highway in today's world, और जाकर के आप टोल पे पैसा देते हैं, and every passing car has to pay 50 rupees, 100 rupees, whatever, depending on the distance। तो आप पैसा देते हैं एंड देन यू मूव अहेड। तो आप वो इमेजिन करो सिनेरियो कि जो हाईवे वाला है, जो टोल वाला है, वो दिन में कितना कमाता होगा। हजारों गाड़ियां गुजरती होंगी, एंड नाउ ही इज चार्जिंग 100 रुपीज एवरेज फ्रॉम एवरीवन। एट द एंड ऑफ द डे ही वुड हैव लैक्स, है ना। अगर आप उस टोल पे कब्जा कर लो, उस टोल पे, उस टोल का जो पैसा है वो अगर आपको मिल जाए, इमीडिएट प्रॉस्पेरिटी है कि नहीं? वैसा ही कुछ प्लान इनका था। ये तो इंटरनेशनल हाईवे था सिल्क रूट, तो सिल्क रूट पे अगर ये खुद का अपना टोल बना ले और लोगों को रोक के उनसे पैसा वसूलना शुरू कर दें, दैट वुड रिजल्ट इन मनी। दैट वाज द रीजन व्हाई दे कैप्चर्ड, दे ऑक्यूपाइड कॉन्स्टेंटिनोपल व्हिच वाज ऑन सिल्क रूट। तो अब अथॉरिटी किसको मिल गई है? द टर्क्स। यहाँ के लोग आकर के यहाँ बैठ गए। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई? ये इवेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ के जितने भी क्रिश्चियन ट्रेडर्स थे, ये सारे के सारे आया करते थे। यूरोप का जो लिंक था, द वेस्ट नाउ वाज नॉट कनेक्टेड टू द ईस्ट, इसलिए इन्हें प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि इनको नीड है स्पाइसेस की, एज आई टोल्ड यू। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ का इवेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज द टर्क्स नाउ स्टार्टेड टू डिक्टेट। जितने भी यूरोपियन ट्रेडर्स थे उनको डराते थे, धमकाते थे, एंड देन दे यूज्ड टू डिक्टेट देयर ओन टर्म्स। इसकी वजह से हुआ क्या? बिकॉज ऑफ दिस क्रूसेड, बिकॉज ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑन सिल्क रूट, जितने भी यूरोपियन ट्रेडर्स थे उनको दो चॉइसेस दी गई, बिकॉज दे वर फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी।
तो जितने भी टर्क्स थे उन्होंने दो ऑप्शन दिए। बढ़िया अपना टोल बनाया यहाँ इस एरिया में आकर के, यहाँ पे अपनी खाट बिछाई, बंदूक रखी और मजे से बैठ गए, उड़ती उड़ती खाने लगे। और जितने यूरोपियन ट्रेडर जाया करते थे सबको पकड़ के बुला देते, आजा कहाँ जा रहे हैं भाई, पूछते थे हु आर यू। The European traders, filled with pride that we are the Englishmen representing, the King of England, Her Majesty's service. आजा आजा इधर आ, एक मार खींच के, राइट, मुर्गा बना इसको। They used to dictate them. जावेद भाई, सलीम भाई, जाओ गड्ढा खोदो और इनको यहां तक डाल दो। They used to bury them till the neck. और उसके बाद बंदूक उठा करके उनकी तरफ पॉइंट करके पूछते थे कौन तेरा राजा है भाई, हुज मैजेस्टी, हुजूर आप सर। And because they couldn't do anything and they were in need of spices, that is why they needed some medium to communicate और एक तरीके से ये जो मामला है इसको सुलझा लें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था उस टाइम। और इसी वजह से ब्रिटिश या जितने भी पोर्चुगीज, जितने भी स्पेनिश, जितने भी ट्रेडर्स थे इस रूट पे जो आया करते थे, इंग्लिश ट्रेडर्स या वेस्टर्न यूरोपियन ट्रेडर्स, उनको दो चॉइसेस दी इन्होंने। टर्क्स ने कहा या तो इस्लाम कबूल करो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। फर्स्ट चॉइस, एक्सेप्ट इस्लाम। सेकंड चॉइस, यू वांट टू डाई और नॉट। हर आदमी जीना चाहता है। इट वॉज नॉट दैट दे कुडंट हैव एक्सेप्टेड इस्लाम एट दैट पॉइंट इन टाइम, वो पॉसिबल था, लेकिन जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है यूरोप का, वो बहुत अलग है ना। यूरोप में अगर आप देखो, दे आर फाउंड ऑफ लिकर एंड दे आर फाउंड ऑफ पोर्क, पिग मीट, और ये दोनों चीज इस्लाम में बैन है। वोडका इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ रशियन कल्चर बट इट इज बैंड इन इस्लाम। लिकर इज बैंड इन इस्लाम, उसका भी एक रीजन है। Islam was born in this region of Saudi Arabia, 50 degrees temperature, desert environment, रेगिस्तान में दिन में चलना मुश्किल, 50 degrees, 55 degrees, and in that scenario if you consume rum, अंदर से जो आग निकलेगी, वॉल्केनो निकलेगा अंदर से। इसलिए वो कल्चर नहीं है वहां, कभी चीज हुई ही नहीं, देखी ही नहीं गई, इसलिए इस्लाम में नहीं है, इसलिए उसका ट्रेडिशन नहीं है। तो वेस्ट में कल्चर है लिकर कंज्यूम करने का, लेकिन इस्लाम में नहीं है। वेस्ट में कल्चर है पोर्क कंज्यूम करने का, पिग मीट, बट इट इज बैंड, नॉट बैंड बट बुरा मानते हैं उसको। और इसी वजह से, कुछ कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से, क्रिश्चियंस कुड नॉट कन्वर्ट इनटू इस्लाम। मरना भी नहीं चाहते थे तो किसी तरह से अपनी जान बचा के भागे वो वहां से, और आगे जाकर के यहाँ के जितने भी रूलर्स थे उनको खबर दी, ये यूरोप के जितने रूलर्स थे, स्पेन, पोर्चुगल और फ्रांस वगैरह के, कि जो हमारा जो लैंड रूट है ये बंद हो गया। द टर्क्स हैज ऑक्यूपाइड एंड दे आर डिक्टेटिंग द टर्म्स, और हमें क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं, बट वी वांट टू स्टिल ट्रेड। अब लैंड रूट तो बंद हो गया, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? सी रूट। अगर आपको याद हो ये वाला डायग्राम, ये जो लैंड रूट है ये तो बंद हो गया, दूसरा ऑप्शन क्या था? सी रूट। और इसी वजह से आप देखोगे there was a phenomenon which was introduced in Europe, particularly Italy, Renaissance. Because of this event, the world saw Renaissance, rebirth of a rationalism, reasoned account of everything, genuine reasons. You might have heard Copernicus and Kepler, heavenly bodies are rotating. रीजन दिया गया, बाद में न्यूटन ने उसको समझाया कि कैसे होता है, लॉ ऑफ मोशन, दैट इज व्हाई दे आर रोटेटिंग। गैलीलियो प्रूव्ड इट, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो रैशनलिज्म, रीजनिंग के साथ चीजें शुरू हुई यूरोप में। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड साइंटिफिक थिंकिंग वाज देयर। इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज होने लगी। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज की वजह से वर्ल्ड मैप्स बनने लगे।
अब एक्सप्लोर करना है एरिया, मैप पे डालना है, तो क्या होगा? मॉडर्न शिप बिल्डिंग होगी। तो जो छोटे छोटे जहाज हुआ करते थे कोस्टल ट्रेड में जो इन्वॉल्व हो रहे थे, अब बड़े बड़े जहाज बनेंगे टाइटैनिक के जैसे। तो मॉडर्न शिप बिल्डिंग वॉज देयर। इसकी वजह से क्या हुआ? वर्ल्ड ट्रेड शुरू हो गया। दिस इवेंट अलोन is related to the world trade which happened in this era। और अगर आप ध्यान दो तो ये डेट देखिए, 1492 AD कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, 1498 AD वास्को डेगामा डिस्कवर्ड इंडिया। ये इस डेट से लिंक करो आप इसको। 1453 1492 डिफरेंस ज्यादा नहीं है, और इसी इवेंट की वजह से ही ये दोनों निकले थे। अगर ये इवेंट नहीं होता तो कोलंबस कभी इंडिया को ढूंढने सी रूट से नहीं निकलता। अगर ये इवेंट नहीं होता तो वास्को डिगामा कभी सी रूट से इंडिया नहीं आता, लैंड रूट था। इसलिए ये इवेंट ने हिस्ट्री को चेंज किया था। दैट इज व्हाई यू सी दैट इज व्हाई यू सी क्रिस्टोफर कोलंबस स्टार्टेड हिज जर्नी। लेकिन ये थोड़ा गलत तरीके से चले गए थे, और क्यों गए थे, कैसे गए थे, ये जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री बताऊंगा तब उसमें डिस्कस करूंगा। ही वॉज इन सर्च ऑफ इंडिया बट ही वेंट टू अमेरिका, और वहाँ रेड इंडियंस कैसे नाम पड़ा, उसको लगा इंडिया पहुंच गए, और वहाँ जो लोग थे वो रेड कलर के थे, मतलब रेडिश स्किन थी, इसलिए रेड इंडियंस बोला गया। तो वो बहुत सारी इवेंट से अलग कहानियां हैं। तो क्रिस्टोफर कोलंबस आफ्टर द कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वेंट फॉर अ वॉयज ऑन द सी, और ये फिर जाकर के अमेरिका को ढूंढेगा। और बिकॉज ऑफ दिस ओनली, अगर आप देखोगे तो वास्को डिगामा पोर्चुगीज यहाँ से होते हुए he would be coming to केप ऑफ गुड होप, मडागास्कर के बगल से होते हुए फिर ये कैलिकट पहुंचता है। अगर ये जो सिल्क रूट का रीजन था